everyone, welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the recursion function that is from the last video which we had dropped the last session. So I have written one example and I have told you about the definition about the recursion function. So today we are going to discuss about the advantage and disadvantage of recursive function, and the next topic we will be moving after completing this as well. Okay, so as I told you, what is the function, what is the recursive function? Recursive function is calling by itself. I have told you about the example, I have told you about the syntax. So let's moving on that particular topic. So let's see the theoretical advantage of function declaration and prototype, calling function by value and by reference, and recursion. Okay, so C provided two mechanisms to pass argument to a function, by value and by reference. By reference is known as the recursion function that I have already cleared to you and already delivered to you that particular lecture. Okay, so in the next topic we are going to discuss about the advantage and disadvantage of the recursive function. So recursion make program elegant, however if performance is vital, use loop instead, as recursion is usually much slower. Okay, so that being said, recursion is an important concept. Basically it is frequently used in DS as well, data structure for the tree and traversal. Might be you have heard about that things. So I have given you one example. I was trying to calculate the number of n number of sum, and that example I have already covered. So in that particular example I have told you like how you can call a function by itself. Okay, and that syntax also we have already covered. So let's move to the next slide. So call by value already you know. Let me read for you. Whenever we call a function and pass something to it, we have always passed the value of variable to the call function. Such function is called call by value. This is the syntax. Okay, and example already you have clear. Call by reference, when we pass the address of the variable to the call function, such as calls are called call by reference. Don't bother about this definition. Simple word you can write call by itself. Okay, so a recursion function is called recursive if a statement within the body of a function and calls the same function. That is when a function call itself, when it is called recursion function. I have already told you about this. This is the definition I have written, and this is the syntax. In this syntax I have already written the one function void recursive. Inside this I have called the same function, and main as well I will call this function. After once you will be compile your code, main method will be calling, and this function is having the recursive method. That's why it will go to the particular method and it will check it by one more function. It will found in the inside that particular function. So that's why we call is the call by itself or call by reference, you can say. Okay, so we will be moving into that next topic, and might be you are heard about that you know, storage classes and all these things you have heard about. So after function we are going to discussion about the next topic. You can try to make some program using function, and if you are having any doubt you can write in a comment so I can help you with it. Okay, so till now you already know about those concepts which I have covered, and about the function I have told you about the calling by value and calling by reference. That is the function and recursive function. And the next we are talking about the storage classes. Okay. So the storage classes क्या होता है? Storage classes in C are used to determine the lifetime, visibility, memory location, and initial value of a variable. There are 4 type of storage classes we are having in C language. And रट लो इस क्वेश्चन को, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर, ये 4 स्टोरेज क्लासेस होती है आपकी जावा के अंदर, जो जिसका नेम है ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर. ये स्टोरेज क्लासेस में जो ऑटोमेटिक होते हैं उसको ऑटो मतलब AUT ऑटो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो प्लेस होता है वो रैम होता है. रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आपने सुना होगा. और डिफॉल्ट वैल्यू से गार्बेज वैल्यू होती है. स्कोप लोकल, लाइफ टाइम विद इन अ फंक्शन. एक्सटर्नल स्टोरेज प्लेस रैम होता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, एंड स्कोप ग्लोबल होता है. टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम मे बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यू कैन डिक्लेयर यूजिंग द एक्सटर्नल. एंड अगेन आपका स्टैटिक है. स्टैटिक में भी आपका टिल द एंड मेन प्रोग्राम, जब आपके मल्टीपल फंक्शन कॉल हो सकते हैं. रजिस्टर का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू होता है वो गार्बेज वैल्यू होता है. विद इन द फंक्शन आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. ये चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी. ये आपके नोट्स है. रिकर्सिव फंक्शन के बाद में मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टोरेज क्लासेस का ही है.
some program reading recursion I have written here to print a message and all. Okay, those are the programs which I have written for you, so you can directly learn. Okay. um, Okay, so let's move to the topic. So every variable in a C programming has two properties, type and storage class. Okay, let me write some theoretical notes for you. As I told you, every variable in a C programming has two properties, that is type and storage class. Type refer to the data type, like you are writing integer data. So data is a variable, and which type of data variable it is integer type. And storage class determine the scope, visibility and life of variable. ये कहाँ पर डिक्लेयर होगा, इसकी visibility क्या है, इसकी लाइफ क्या है आपके प्रोग्राम के अंदर, ये सारे चीजें आपको क्या करता है स्टोरेज जो क्लासेस होते हैं वो प्रोवाइड कराता है. तो ये चार टाइप की होती हैं अभी क्लासेस. पहली कौन सी होती है, ऑटोमेटिक. आप ये ऑटोमेटिक होते हैं. दूसरा आपका क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, मैंने अभी आपको बताया है एक्सटर्नल होता है. और तीसरा क्या होता है आपका, स्टैटिक होता है. एंड चौथा क्या होता है आपका, रजिस्टर्स होते हैं. आपको इसके बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आई विल टेल यू. सो लोकल वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए ब्लॉक. और ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल, आप इसको क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक को लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं. सो द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए ब्लॉक आर ऑटोमेटिक और लोकल वेरिएबल. द लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द ब्लॉक इन which you are declaring that particular variable. So we are talking about first local variable. So I will write the definition, and side by side I will cover one program. Okay, so you can write the local variable here or you can write the automatic as well. So the variable declared inside a block, you can type inside a block are ऑटोमेटिक और क्या बोलते हैं उसका, लोकल वेरिएबल. करेक्ट. सो द लोकल वेरिएबल कैसे एग्जिस्ट करता है, नोट में लगा के आप इसको लिख लीजिए. द लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली inside the block in which it is declared. Okay, you can do these things. I can use this. This is very good tool actually. So example की बात करते हैं. Okay, you know the example, but if you want me to write, I will write for you. This is a very simple program. I'm just going to declare one variable. That variable I'm going to use in your program. So definitely that will be the local variable. Okay, let's move into your C drive. Not C drive, Turbo C++. I'm going to open a new source file, and I'm going to write a program. The name is A. You can write A, B, C, anything. You can write A.C और only A1 लिख देते हैं. इस फाइल का नेम ओपन करेंगे. फाइल नेम इज नॉट वैलिड. ओके, oh my god, I have written something else. Oh, what is this function CCP? My function, you can write anything. It's not nothing like that. We cannot write. I'm going to write it. Okay, it's giving some error message. What I'm doing the mistake. Okay, let me. I'm trying to open, or I'm trying to create a file. What is the option? I have selected the open a file. The file is not available. How it will be open? Crazy. Okay, I'm going to, that time I was clicking on the open file, and I was trying A1 something. That file is not available. That's why it was saying that file is not available. We are missing that particular text message which it was showing on the window. Okay, let me declare one file. Okay, so it's saying okay, I will replace it, no problem. Okay. तो यही भी लिख सकते हैं प्रोग्राम, चलेगा.
इसी वाले प्रोग्राम में कर लेते हैं। मैंने क्या करा, एक यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं। लोकल वेरिएबल आप लिख रहे हैं, लोकल वेरिएबल को आप डायरेक्टली भी डिक्लेयर कर सकते हैं और इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं अभी आपको फॉर लूप वगैरह के बारे में सब कुछ पता है, तो सिंपली मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ। तो मेरा ये जो प्रिंट है ये आपका कितनी बार प्रिंट करने वाला है, यहाँ पे हमने इस मैसेज को प्रिंट कराया और इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और अभी हमने यहाँ पे प्रिंट एफ कराया और प्रिंट एफ में मैंने क्या कराया, मुझे ये वेरिएबल प्रिंट कराना है। अभी आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम चलेगा? नहीं, इस प्रोग्राम में एरर आएगा। क्या एरर आएगा? क्योंकि जो आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है वो फोर के लूप के अंदर डिक्लेयर किया है, बाहर डिक्लेयर नहीं करा है, मेन मेथड के बाहर, फोर लूप के बाहर डिक्लेयर नहीं करा है। तो ये बोलेगा आपको आई इज नॉट डिक्लेयर एट दिस पॉइंट, आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है, आप उसको किसे प्रिंट करा रहे हैं? चलो ठीक है, चलो चेक करते हैं। कंट्रोल F9। ओके ओके ओके, उसने क्या प्रिंट कर दिया? आपका एक्सचेंज प्रिंट कर दिया। वापस से जाके रन कराते हैं। यहाँ पे वॉइड मेन मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया, आई प्लस प्लस आई इज इक्वल्स टू 0, और आपने इसको प्रिंट कराया, आई को प्रिंट कराया, कंट्रोल F9। what is going to print hello? Okay, we'll be using the backslash as well. Okay, एक लाइन का पता चलेगा ना यहाँ पे। For now I will commit this. Okay, हाँ, हेलो इंटेलिजेंस एक्सचेंज, हेलो इंटेलिजेंस एक्सचेंज, तो एक वेरिएबल आपने लिया है और उस वेरिएबल को यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया है। यू कैन डू वन थिंग, आई एम ट्राइंग टू बी राइटिंग हियर इंटीजर एंड दैट this is also the way to type in one book I have seen, though you can write this one as well. And so it is a return type, you have to mention here control S, control F9, you are going to type hello intelligence exchange, hello intelligence exchange. Okay, cool. And here now I'm going to uncomment this line. I will save in control F9. 5, it is printing 5, it is not printing 1 2 3 4 5, it is only printing 5 because once it is coming out, so it is printing 5. I think if I'm using here if I will try to use inside this printf function percentage d comma I and backslash n, you can use here. Okay, so this is you can do, and definitely you're going to sample. Okay, so now in that case what is it is trying to print the all the value as well. Okay, so what I will be doing, I will go back and I don't want to print inside this. What I'm trying to do is actually I'm trying to print this printf outside this block. Okay, I want to print here outside the block. I have written one for loop here, I is equal to 0 here. What is this? I is equal to 0 and I less than 5 and I plus plus, control S, control F9, and it's printing 5. Why it is printing 5 actually? Okay, जब वो बाहर आ जाएगा तो उसको I की वैल्यू मिलेगा, और तो I की वैल्यू उसके पास रहेगा, वो 5 प्रिंट करेगा। सो इस केस में ये आपको यहाँ पे 5 प्रिंट कर रहा है। ओके, but this is not, this should not be, should declare like I is not declare, because मैंने ये जो डिक्लेयर किया है वो for loop में डिक्लेयर किया है ना। C में ऐसा क्यों हो रहा है? that some advanced things, क्या integer I, if I am using this and I will be using control F9, yeah, so it's last value is printing, but ये मैंने ब्लॉक बंद कर दिया है। so what I will do, I will try to be doing this and integer I okay, cool, control X. I will start some new concept and will explain you it later. Let's move to the next point. So the point was, when you run the program, we will get the things what you have written, and what the variable if you have declared that can be used in a
डिफरेंट वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल होता है आपका वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन आर नोन एज द एक्सटर्नल और ग्लोबल वेरिएबल। एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। मतलब अगर आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, अभी जो हमने पहले एग्जांपल लिखा है, अगर हम एक सेपरेट फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर में हम लूप को लिखते हैं और फिर उस वेरिएबल को हम बाहर यूज करते हैं, तो मुझे वो डेफिनेटली एरर देता है। ओके, ग्लोबल का मतलब है कि आपने बाहर डिक्लेयर किया, उसको कहीं पर भी आप यूज कर रहे हैं, वो आपको ग्लोबल वेरिएबल कहता है। तो वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस आर नोन एज एक्सटर्नल और ग्लोबल वेरिएबल। दे आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी फंक्शन इनसाइड योर प्रोग्राम। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन हियर फॉर द ग्लोबल वेरिएबल। और उनको आप क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को ही आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डेफिनेशन, वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शंस आर नॉन एज एक्सटर्नल और यस ग्लोबल फंक्शन। ये आपका यहाँ पे ग्लोबल फंक्शन होता है, एक्सटर्नल एंड ग्लोबल फंक्शन। ओके, सो फंक्शन इज नोन एज द एक्सटर्नल एंड ग्लोबल फंक्शन। सो यहाँ पे एग्जांपल हम मतलब मैं आपको जस्ट यहीं पे टाइप करके बता देती हूँ एग्जांपल, यू कैन राइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इंक्लूड लिखा है, जो भी आप लिखते हैं उसके बाद में ये stdio.h होता है, करेक्ट है। मैंने एक फंक्शन बनाया है, सपोज मैंने फंक्शन का नेम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले रख दिया है, डिस्प्ले में मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया है, सपोज n इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 10 एक वैल्यू पास कराई है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ये मेरा फंक्शन के बाहर है वेरिएबल, और ये डिक्लेरेशन है, तो यहाँ से आप कर्ली ब्रेसेस को हटा देते हैं और यहाँ पे सिंपल इसको मैंने डिक्लेयर किया मेथड को। अभी मैंने इंटीजर मेन लिखा है, ये मेरा मेन मेथड है, इसके बाहर मैंने इसको लिखा है, तो ये इसका सिंटेक्स होता है जिस मुझे प्रिंट भी कराना है। तो ये जो वेरिएबल है आपका, ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है आपके मेन मेथड के अंदर भी रहेगी, और नीचे जब आप इस फंक्शन को डिक्लेयर कराएंगे इस तरीके से वॉइड डिस्प्ले, तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी आप इस फंक्शन को प्रिंट कर सकते हैं। किसको प्रिंट कर सकते हैं, एन को। सपोज मैंने n प्लस प्लस दी, कुछ भी मतलब कुछ भी वैल्यू दे दी यहाँ पे, तो ये जो है आपका यहाँ पे भी आप इसको n को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने n माइनस माइनस रख दिया या n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 रख दिया, कुछ भी जो भी आपको लिखना है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। तो ये ग्लोबल फंक्शन होता है, ग्लोबल जो होता है वेरिएबल होता है वो बाहर फंक्शन के डिक्लेयर होता है, वो ग्लोबल और एक्सटर्नल उसको हम बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रजिस्टर्स पे। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, द रजिस्टर कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर रजिस्टर वेरिएबल। तो ये रजिस्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं, जिसके बारे में आपको पता है वे कौन कौन से होते हैं और किस तरह से यूज होते हैं। रजिस्टर वेरिएबल वर सपोज्ड टू बी फास्टर देन द लोकल वेरिएबल। बेसिकली द मॉडर्न कंपाइलर्स आर वेरी गुड एट कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड देयर इज अ रेयर चांस दैट यूज रजिस्टर वेरिएबल विल मेक योर प्रोग्राम फास्टर। सो अनलेस यू आर वर्किंग और यू आर वर्किंग ऑन एम्बेडेड सिस्टम वेयर यू नो हाउ टू ऑप्टिमाइज द कोड, सो दैट एप्लीकेशन इज नो यूज रजिस्टर वेरिएबल। सो बहुत कम ये यूज होता है, बेसिकली आपका मेनली आपका स्टैटिक ही यूज होता है। सो बेसिकली हम स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड दैट इज नोन एज द स्टैटिक वेरिएबल। तो हम यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये आपके एग्जाम में ना इतना एग्जाम्पल इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, सिंपल आपको ये पूछा जाएगा कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, और उनका एक एक लाइन का आपको डेफिनेशन लिखना होगा। ये 5 या 4 नंबर का या फिर कभी कभी 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल ही आता है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट मोस्टली थ्योरेटिकल आता है। तो अगर आपको एग्जाम्पल याद है, आपको पता है कि मुझे एग्जाम्पल में क्या लिखना है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको सिंपल लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने वाली हूँ, द रजिस्टर कीवर्ड इज यूज्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर रजिस्टर वेरिएबल्स। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, रजिस्टर वेरिएबल्स, ओके। एंड रजिस्टर वेरिएबल आर सपोज टू बी फास्टर, ये सब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, सो बेसिकली द स्टैटिक वेरिएबल आपका डिक्लेयर होता है स्टैटिक कीवर्ड के साथ। ए स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टैटिक लिखा इंटीजर आई, तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। द वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल परसिस्ट अंटिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ओके, सो अगर मैंने कोई वैल्यू स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू मेरी
कांस्टेंट की तरह काम करता है सी लैंग्वेज में। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको बता देती हूँ करके। यहाँ पे आप एक एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे हम एक पूरा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। include stdio.h, यहाँ पे मैंने लिखा है void display, ये फंक्शन है मेरा। कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे पहले फंक्शन नहीं लिखते, आप लिख सकते हैं पहले फंक्शन, तो फिर आपको नीचे मेन में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया है। और मैंने क्या किया है, इस डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराया है। आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, मैं 2 बार कॉल करके दिखाने वाली हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको फंक्शन बना लेती हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया है ये। और यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक इंटीजर c इज इक्वल्स टू 1 एक वेरिएबल लिया है। मैंने यहाँ पे c इज इक्वल्स टू c+5 रख दिया है। और यहाँ पे मैंने इसको ना प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ करके %d लिया है और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कराया है। और ये कर्ली मैंने बंद कर दिया है। और अब यहाँ पे मुझे एक एरर मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है ना, ऊपर सेमीकोलन लगाया है। ओके, सो अभी मेरा प्रोग्राम है, इसमें मैं यहाँ पे एक गेट ch भी यूज़ कर लेती हूँ, clr भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। और मुझे यहाँ पे पहले प्रोग्राम में मैंने कुछ तो गड़बड़ किया था शायद, आई थिंक। नो प्रॉब्लम, विल बी कंटिन्यू। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके, कंट्रोल F9, मेरा आउटपुट में मुझे C6 मिला है। अभी एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है इसको 2 बार, कंट्रोल S कंट्रोल F9। आपको क्या मिला है 1। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे \n लगा देते हैं। मैंने लिखा है डिस्प्ले के अंदर स्टैटिक की जो c की वैल्यू 1 है और c इज इक्वल टू c+5 है। तो मैंने यहाँ पे c को प्रिंट कराया है, मतलब मेरे पास c की वैल्यू कितनी 1 + 5 6, तो मेरा c में क्या स्टोर हो जाएगा 6 स्टोर हो जाएगा। कंट्रोल F9 मैंने किया, पहली बार में मेरा 6 स्टोर हो रहा है और फिर मेरा आउटपुट मेरा 11 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने दोबारा इस फंक्शन को कॉल कराया है। तो अभी आपके पास 6 है इसकी वैल्यू, और 6 + 5 मेरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो C की जो वैल्यू है ये किस तरह से काम करती है, कॉन्स्टेंट, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है आपकी। ये वैल्यू जो आपने स्टैटिक डिक्लेयर किया है कॉन्स्टेंट, ये एज इट इज रहेगा। ये जो आपने यहाँ पे लिया है वो यहाँ से उसकी वैल्यू को उठाएगा जो आपने डिक्लेयर किया है, एंड देन इट विल प्रिंट अगेन। ऐसे ही अगर आप डिस्प्ले को यहाँ पे दोबारा से रन कराएंगे तो वो उसमें प्लस कर देगा। तो स्टैटिक जो होता है आपका मेमोरी सेव करने के लिए यूज होता है। इस तरीके से इसका मेन यूज ये होता है। मतलब ये कि ड्यूरिंग दिस फर्स्ट फंक्शन कॉल द वैल्यू ऑफ C इज इनिशियलाइज्ड टू 1. Its value is increased by 5. Now the value of C is 6, which is printing on the screen, you have seen. And during the second function call, C is not initialized to 1 again, because it is static. It is because C is a static variable. The value of C is increased by 5. Now its value will be 11, which is printing on the screen. And again the value of C is not initialized again at 1. Now it will be this, because C is a static variable, and the value of C is increased by 11, and it will calculate 11 plus 6, and the output will be how much it will be. So पहले आपका 6 आया और उसके बाद में आपका 11 आया, और 11 में जो आपका लिखा होगा वो 16 आएगा वहाँ पे। ओके, तो वो का वैल्यू वहाँ पे 11 + 5 लिखा है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दैट विल बी प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन। सो ये आपके स्कोप की बात हो गई। तो ये सब आपका स्कोप था, किस तरह से स्कोप होते हैं आपके। तो आपका स्टोरेज क्लासेस होता है, रजिस्टर होता है, टाइप स्टोरेज होता है, एक्सटर्न होता है, और आपका लोकल वेरिएबल जिसे आप बोलते हैं वो होता है। तो ये आपके स्टोरेज क्लास के होते हैं। नाउ हम बात करते हैं फंक्शन के कुछ एग्जाम्पल की, वो आप घर से ट्राई कर सकते हैं। आई विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट, देन आई विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, array. So basically the function is a block of code that perform a specific task. Okay, so there is a 2 type of function. One is user defined, second is a predefined. Predefined means like standard library function, kind of printf and scanf. User defined function, whatever the function you are defined according to your need, and you can things like type of function we are having.
function with parameterized function, non-parameterized function, returnable function, non-returnable function, returnable plus parameterized, non-returnable plus parameterized, non-returnable plus non-parameterized, and non-returnable with parameterized. So those are the function we had discussion about that. And the scope of variable we had already discussed, and the recursion, those things we have already discussion. So now you can do some example by yourself, like you can find out the GCD using recursion function, calculate the factorial of using recursion function. So as I told you, I'm going to cover one example for the recursive function, because that is the very demanding program used to ask in your exam as well. तो factorial of a number using recursion. So पहले हम बात करते हैं, आपको थोड़ा पहले समझाते हैं, नोटपैड विंडो पे जाते हैं यहाँ पे कि ये मेरा होता क्या है बेसिकली. सो द फैक्टोरियल एक जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल का, वो क्या होता है हम पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद में हम उसके बारे में प्रोग्राम लिखेंगे. तो जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल ऑफ, मैंने बोला कि मुझे एन का फैक्टोरियल निकालना है, तो मेरा एन, ये जो साइन है ये इसमें सी लैंग्वेज में इस तरह से लिखते हैं, मैथ में आप ये थोड़ा ऐसे करके लिखते हैं, मतलब जैसे एल लिखते हैं उल्टा, तो ये होता है. तो मैंने कहा यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल आपका ऐसे सपोज करिए 1 × 2 × 3 × 4 एन नंबर का निकालना है. तो ये कहाँ तक जाएगा, आपका मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज कीजिए, और ये करते 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 मल्टीप्लाई एन तक चला जाएगा. ये आपका फॉर्मूला होता है. जैसे कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल ऑफ 5, तो 5 का मेरा फैक्टोरियल होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1. तो ये मेरा इसका फैक्टोरियल हो जाएगा. सो द फैक्टोरियल ऑफ ए नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए. द फैक्टोरियल ऑफ 0 is 1. जो मेरा 0 का फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है. You will learn to find out the factorial of a number using recursion function. That example I'm going to show you now. But for your note, you can remember one thing: the factorial of 0 is 1. Okay. तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं. ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 0 का फैक्टर, 0 यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, the factorial of 0 is 1. This is your note. And now we are going to move into that particular example for the factorial. Okay, now I will be moving in the Turbo C++ and I will open a new source file. I am going to type this name, the factorial program, and here I will start writing this code. So the code part I'm going to write. You have to include these two files, include stdio.h, and you will be using the include conio.h, because this console input output header file is having the get ch and clr function, and the stdio.h is having the printf and scanf function. That's why I need to add these two in your C language file. Okay, here you can use the void main. Now we are using the integer main, so you can learn both the things. Why we use the void? You no need to return any return type. So return 0 if you will return, that means it will exit the program, and you are using the integer type, that's why you have to give it the integer return value. Okay, so यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक वेरिएबल n लिया है, और अभी यूजर से हम इनपुट कराते हैं. हमने इनपुट में कराया है यहाँ पे एंटर, यू कैन राइट एंटर ए पॉजिटिव नंबर और एनी नंबर, यू कैन, व्हाट इज योर things, you can write positive number just for numeric number, or which is non-negative I used to write. Okay, मैंने यहाँ पे लिखा है स्कैनफ कराते हैं, इंटीजर वैल्यू है तो एम्परसेंट आपको लेना पड़ता है. ये पॉइंटर वाले टॉपिक में आप सीख जाएंगे, बट फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दैट इज फॉर पॉइंट टू द एड्रेस. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है, जो भी आप लिखने वाले हैं, कि ये आपका क्या प्रिंट करने वाला है, फैक्टोरियल. क्या प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल ऑफ, इसका प्रिंट कराने वाले. अगर आपको ये भी लिखना है तो आप इस तरह से थोड़ा सा लिख लीजिए. मैं एक काम करते हैं, हमने एक मेथड के थ्रू करते हैं, फंक्शन के थ्रू बनाते हैं इसको. डायरेक्ट हम ऐसे डायरेक्ट बनाएंगे तो आपका फंक्शन भी रिवाइज हो जाएगा. तो एक फंक्शन हम लेते हैं कि उसमें क्या ना, आप 10 20 कितने का भी ले सकते हो, तो लॉन्ग लेगी. एक इंटीजर की लिमिट कम होती है, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग ले लिया है, और मैं फंक्शन के थ्रू करती हूँ. तो बिकॉज फंक्शन के थ्रू क्या रहेगा ना, आपको ये रिकर्सन यहाँ पे यूज हो जाएगा. तो हम रिकर्सन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करेंगे. मैंने आपको बताया था कि रिकर्सन का करेंगे, तो मैंने ये लिया है. हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, अगर आप ये लॉन्ग लेते हैं तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम एलडी का यूज़ करते हैं. इस चीज़ का आपको रिमेंबर रखना है. और मेरा जो प्रोग्राम है वो इस तरह से काम करेगा, कॉल बाय इटसेल्फ. कॉल बाय इटसेल्फ मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को आप कॉल करा रहे हैं. आपके फंक्शन का नेम है वो मल्टीप्लाई नंबर है.
तो आप इसको यूज करेंगे मल्टीप्लाई नंबर में, क्या पास करा देंगे, मैं यहाँ पे n पास करा देंगे। ये मैंने इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही ये फंक्शन को मैंने कॉल करा लिया। डोंट वरी, इट इज वेरी 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 सिंपल। रिटर्न 0 करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम लोगों को गेट ch भी यूज करना होता है, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे गेट ch एंड देन clr दिस इज अ predefined function that I'm going to use. Now I'm using this next function. Here I will be giving the declaration of this particular function, so you can see the body of this function, multiply number integer n. Now I'm going to write the logic for inside this program. Okay, so मैंने लिखा if जो n की जो वैल्यू है, जो आपका इनपुट वैल्यू रहेगा यदि वो ग्रेटर देन है मेरा 1 से और इक्वल है मेरा 1 से। ओके, अगेन आपकी चॉइस है। देखो, आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हो तो कर्ली ब्रेसेस लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। n मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे लिखा n मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई नंबर। तो फॉर्मूला क्या, n मल्टीप्लाई n-1 होता है फॉर्मूला, तो ये मेरा फंक्शन का नेम आ गया यहाँ पे। तो ये आपका कैलकुलेट करेगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा। मतलब आपने कोई -1 एंटर कर दिया, कुछ भी एंटर कर दिया, रिटर्न 1 कर, वो मतलब बाहर आ जाएगा, ट्रू वैल्यू करके वो आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा। मैंने क्या करा, कंट्रोल-S कराया, कंट्रोल-F9 कराया, मुझे एक एरर आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल मल्टीप्लाई नंबर। मुझे लगता है कि मैंने कोई फंक्शन का नेम गलत कर दिया है, लेट मी चेक। ये n मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नंबर multiply ओके, सही है मेरा फंक्शन। ऊपर जाके चेक करते हैं। ओके, आई विल रन इट अगेन। व्हाट इज द एरर, विच लाइन नंबर, इंटीजर। ओके, मल्टीप्लाई नंबर multiply मल्टीप्लाई नंबर्स। ओके, इंटीजर मेन में जाइए, हमने यहाँ पे कॉल कराया मल्टीप्लाई नंबर। ओके, यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉल हो गया है, मैंने रिटर्न करा दिया है, दैट इज वेरी गुड। और यहाँ पे मैंने n को इनपुट कराया है, ये भी ठीक है। मेरा n वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कराया है, ठीक है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। मैंने लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लाई लिखा है यहाँ पे, बट ये मुझे क्या बोल रहा है, कर्ली ब्रेसेस का हम यूज कर ही लेते हैं। नहीं, मैं उसको करेक्ट भी कर दूंगी, नॉट टू बी वरीड अबाउट दिस। ओके, हाँ, तो अभी हमने क्या n मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो सही लिखा है, स्पेलिंग तो सही लिखी है। ओ माय गॉड, यू कैन सी मल्टीप्लाई लिख दिया है, मल्टीप्लाई NUL मल्टीप्लाई। ओके, तो कर्ली ब्रेसेस का यूज करने का आपको जरूरत नहीं। वो मैं एक सिंटेक्स में लिखती हूँ, इसलिए मैं कर्ली ब्रेसेस देती हूँ वहाँ पे। But few students ask me like why you are writing this, because this is not necessary. So it's your choice to be, because if you are writing in a proper way, if you are a beginner, so that will be mandatory for you, and it will be easy to understand. That's why I used to write. Okay, पॉजिटिव नंबर मुझे देना है, मैंने 5 लिखा तो मुझे 5 का मैंने 120 मिलेगा, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपका 120 आएगा। एंटर कर दीजिए। मैंने इसका करा, मैंने 10 का निकाला, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये निगेटिव नंबर में जाएगा। बिकॉज क्यों जाएगा, मेरा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई समथिंग, उसका मेरा यहाँ पे जो भी रिटर्न आएगा वो वैल्यू आ जाएगा। मैंने 4 लिखा तो 4 का 24 होता है, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल F9 लिखा, 2 का कितना होता है, 1 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। मैंने कंट्रोल F9 किया, 3 का लिखा तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ओके F3 गलती से हो गया है मेरा, कंट्रोल F9 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ जाएगा आपका। तो ये आपका फैक्टोरियल का यहाँ पे प्रोग्राम हो गया है। तो हमने बात करते हैं फैक्टोरियल के प्रोग्राम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक्चुअली हर जगह पूछा जाता है। आपको पता है, अगर मैं अभी भी इंटरव्यू देती हूँ ना, तो मुझसे अभी भी पूछ जाता है। वो सी लैंग्वेज में नहीं पूछ जाता, आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो पाइथन में, जावा यूज कर रहे हो तो जावा में, लेकिन सभी का कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। आई मीन जस्ट लॉजिक आपका सेम रहता है, लिखने का तरीका आपका चेंज हो जाता है, बिकॉज आप सबके सिंटेक्स अलग अलग होते हैं। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये कोड समझ में आया है। अगर नहीं आया तो कमेंट में पास कर सकते हैं। I am repeating again what I did in this program. Suppose the user enters the value number 5, as I told you. So initially multiply number function which I have called, the main method will be passed 5 as an argument, and then 4 is passed to multiply number for the same function, because the formula is n-1. So 5 minus 1 is 4, and recursively it will call and it will calculate 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, and what will be the output, it will declare that particular output. Okay, so this is the program which I
have covered by the recursion function. Okay, so there is a multiple program that you can do by yourself, and if you need any help for any kind of program, so you can write in a comment, and I will try to be clear your doubts. So next we will be moving into that particular array. So पहले हम बाहर आ जाते हैं इस विंडो से और नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं एरे पे. पॉइंटर्स हम बाद में देखने वाले हैं. तो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में एरे क्या होता है. तो एरे का भी मेन रोल होता है एक्चुअली. एरे क्या होता है, जो इनिशियल इंडेक्स होती है एरे की वो 0 होती है, 0 1 2 3 4. तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, पेंट ओपन करते हैं. पेंट में मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ एक डायग्राम बना के कि मैंने यहाँ पे सपोज ये पेंट है आपका, यहाँ पे इमेज तो नहीं कुछ भी इसका इसमें सिलेक्शन नहीं आता क्या, ये शेप है ना, शेप है. सो यहाँ पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया है, ये शेप ले लिया है, ये मेरा बॉक्सेस है. इसमें शेप में आप एरो का साइन ले लीजिए. सपोज मैंने यहाँ पे, यहाँ से लेते हैं, ये इंडेक्स बना लेते हैं. मेरे पास ये 1 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, रहने दीजिए इसको. ये मेरे पास बॉक्सेस में बना रही हूँ. ओके, तो मतलब आप इनको ऐसे समझिए, मेरे पास ये जो होते हैं ना, ये बॉक्स है, इसको एरे है, ये पूरा एरे है. क्या है ये आपका पूरा एरे है. और ये जो है ये आपके इंडेक्सेस है. मतलब शेप दूसरा लेना पड़ेगा मुझे. जैसे मैंने सर्कल ले लिया है, तो ये मेरा ये हो गया 0 इंडेक्स हो गया. ठीक है ना. अभी हम पेन कहाँ है, पेन. ओके, सो ये 0 है. और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर टेक्स्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिए ये 1 हो जाएगा. आपका क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है. इस तरह से आप लिखिए. वेयर इज योर ब्रश, हम लेते हैं. ओके, ये आपका क्या है, 1 है, और ये 2 है, ये 3, और ये 4, एंड ये आपका 5 बॉक्स सपोज. तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इंडेक्स. पेन नहीं चल रहा है लैपटॉप पे, इस मुझे पेंट करना पड़ता है. इंडेक्स कहलाता है, ये आई है. ओके, और ये पूरा आपका क्या कहलाता है, एरे. ये क्या है आपका, एरे है. ओके, तो ये आपका एरे का है. तो ये मतलब ये साइज आप डिक्लेयर करते हैं 0 1 2 3 4 5. सो एन एरे इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू. सो अभी अब बात करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. नया फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं. तो एरे क्या होता है बेसिकली, एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने इंटीजर लिखा, एक डेटा वेरिएबल एंटर किया यहाँ पे 100. आपको पता है मैंने एक सबसे पहले एग्जांपल बताया था आपको नेम प्रिंट करने का, तो वहाँ पे लेंथ यूज कर रहे थे और एस यूज कर रहे थे. ठीक है, वो वही लेंथ है आपका. इंटीजर इज अ टाइप, डेटा टाइप, और डेटा इज अ वेरिएबल, एंड 100 इज अ लेंथ. सो इन दैट एग्जांपल यू कैन सी यू कैन स्टोर 100 integers that can create an array for that particular variable which you are using like as data. सो डिक्लेरेशन कैसे करते हैं इसको. सो हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल. अब अगर मैं आपको सिंटेक्स में लिखना है, आपको एग्जाम में अगर सिंटेक्स लिखना है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरीके से. ये क्या है आपका, पहला डेटा टाइप होता है. डेटा टाइप के बाद में आपका यहाँ पे एरे का नेम आता है, और इसमें क्या आता है आपका, बॉक्स में एरे का साइज आता है. तो आपको ऐसे लिखना होता है. ये भी सही है, बट एग्जामिनर कभी कभी नहीं करते हैं. तो अभी मतलब जरूरी नहीं कि इंटीजर है, वो कहेगा मुझे फ्लोट लेना चाहता हूँ, मुझे डबल में वैल्यू लेनी है, मुझे यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू लेनी है, मुझे मार्क्स प्रिंट कराने हैं बच्चों के जो कि आपके पॉइंट्स में रहते हैं. तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये रॉन्ग हो जाएगा. तो इसलिए आपको सिंटेक्स में इस तरीके से लिखना होता है.
So it's important actually to be not, you cannot, that the size and type of an array cannot be changed once it is declared. Suppose you have declared 100 size, okay, and you are trying to store 101, 102, 103 values in your array, so that will be array index out of bound. If you're Java student you can understand, not then not to worry. तो आपका जो लेंथ है, जो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको वैल्यू इतना डालना पड़ेगा, नहीं तो वो आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा. मतलब आपके अलमीरा में 3 बॉक्स हैं एंड यू आर ट्राइंग टू फिल योर बॉक्स बेस्ड ऑन योर 5 बॉक्स you are having in your almirah, the data which you are having, you are trying to store more than the capacity of that almirah, so that will be wrong. So वो उस केस में आपको ये एरर देता है. तो दिस इज द एग्जांपल. सो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, नोट बना के आप लिख सकते हैं कि दैट द साइज एंड द टाइप ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज वंस इट इज डिक्लेयर. सो एक्सिस एरे एलिमेंट कैसे करते हैं, आपको मैंने बताया कि सपोज you are declaring array as a marks in a particular example. So marks 0 will be stored in a 0 index, marks 1 will be stored in the 1 index, marks 2 be stored will be in the 2 index, and 3 on the third index, 2 index and 4 will be the third index. Like हमने पेंट में देखा है, यहाँ पे पेंट मतलब 0 इंडेक्स पे आपका मार्क्स 0 रहेगा, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, मार्क्स 5, ऐसे आपका ये डिक्लेयर होता है यहाँ पे. मतलब अगर आपने इसका जो एरे का जो साइज है वो 4 है, 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा ना 0, तो 0 से कैलकुलेट होता है. अगर आपने 5 लिखा है ना तो 1 2 3 4 5 का काउंट नहीं होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5. तो मतलब इंडेक्स जो होता है एरे का वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. तो इस चीज का भी आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है. तो अभी हम कुछ की फैक्ट्स बताते हैं आपको. जो एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स नॉट 1, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एरे का जो इंडेक्स होता है आपका, तो यहाँ पे आप नोट बना के लिख सकते हैं, एरे इंडेक्स जो होते हैं 0, द फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है आपका 0 होता है, नॉट 1, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, तो द साइज ऑफ एन एरे कुछ भी हो सकता है एन, बट द लास्ट इंडेक्स विल बी n-1. मतलब मैंने 5 बताया तो 5 - 1 4, तो 0 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया, 5 हो गया. तो अब आपका ये चीज भी आप नोट में लिख लीजिए. इफ द साइज ऑफ एन एरे is n, to access the last element, the n-1 you are going to follow. Index is used, sorry. सो ऊपर 5 साइज है ना आपका, तो आपका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 0 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 हो गया. 0 1 2 3 4 4 3 2 1 एंड 0, तो 0 से स्टार्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. ओके, सो दिस यू एंड आपको ये तो पता ही है कि फ्लोट आपका 4 बाइट का होता है. ओके, सो इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं एरे का, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इनिशियलाइजेशन. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इनिशियल, कैसे इनिशियलाइज करते हैं एरे को. तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको दिखाया ओवर मार्क्स आपने यूज करा है कि क्या यूज करा है 5. तो आपका इनिशियलाइजेशन होता है. अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डिफाइन करेंगे 4 6 7 0 1 2 3 4. ये आपने एरे का इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कर दिया. आपको एरे का इनिशियलाइजेशन करना होता है, इस तरीके से आप करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा के आप यूज करते हैं इसको. ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू एलिमेंट, ये सारी चीजें मतलब जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, बाकी प्रोग्राम आपका सही रहेगा. तो अभी मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं हम, जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे 5 वैल्यूज का और उनको हम एरे के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे. तो एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं एरे का.
ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, हैश इंक्लूड। इंटीजर में यहाँ पे मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दिया है, वैल्यू डिफाइन करा है मैंने, इसका लिमिट मैंने यहाँ पे 5 दे दिया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है printf में फंक्शन, आपकी मर्जी आप किस तरह डिक्लेयर करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा अच्छे से डिक्लेयर करते हैं इसको। मैंने लिखा एंटर 5 इंटीजर वैल्यू, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे लिख देते हैं \n का यूज करते हैं हम। ओके, और यहाँ पे मैं इसको स्कैनफ करा लेते हैं वैल्यू को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हम एरे के थ्रू करें, तो मुझे 5 वैल्यू या तो मुझे 5 के 5 इनपुट कराने पड़ेंगे, बट हम एरे यूज़ करें तो हम सिंपल क्या करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं। वैल्यू हमने ले लिया ऊपर, कोई भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहे तो यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉर लूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई डिक्लेयर कर दिया और मैंने लूप लिया और मैंने आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन यहाँ पे यूज़ करा मैंने 5 एंड आई प्लस प्लस का मैंने यूज़ किया है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू को इनपुट करा दिया है यूजर से %d, और किस में जाएगा, ये आई में जाएगा। तो यहाँ पे आप आई में जाएगा क्या, नहीं मेरा एरे के थ्रू करा रहे हैं ना, % यूज़ करेंगे तो मेरा वैल्यूज़ है, मतलब एरे इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आई। तो मतलब कैसे चलेगा ये कि मेरा वैल्यू एस नहीं है, वैल्यू है। तो मैंने इनपुट कराया आई 0 पे जो वैल्यू जाएगी वो मेरी वैल्यू 0, मतलब वैल्यू 0 मतलब 0 इंडेक्स पे मेरे जो आई पे आप वैल्यू एंटर करने वाले हैं वो मेरी वैल्यू 0 इंडेक्स पे एंटर हो जाएगी। फिर मेरी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 0 + 1 1 हो जाएगी। अगेन जो मेरा लूप चलेगा उसमें मेरा वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 1 की वैल्यू मेरी वो रहेगी जो आप दूसरे नंबर वैल्यू एंटर करेंगे। फिर मेरा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगा, तो वैल्यू 2 पे वो वाली वैल्यू जाएगी जो आप थर्ड टाइम पे एंटर करेंगे। ऐसे मेरी वैल्यू 4 पे एंटर है, 0 to 4 चलेगा लूप आपका। अभी मुझे यही सेम चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले करानी है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको प्रिंट कराना है फिर से, तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से यूज़ कर लिया है इस लाइन का। \n हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हमें भूलना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि लाइन बाय लाइन आप वैल्यू एंटर करें तो यहाँ पे भी आप \n का यूज़ कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्ले वैल्यू कराना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले इन वैल्यूज़ या इंटीजर वैल्यूज़, कुछ भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं डिस्प्ले वैल्यूज़ करके। मैंने एक मैसेज यहाँ पे दे दिया है और अभी मुझे डिस्प्ले कराना है सारी वैल्यू को, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू प्रिंट थ्रू द लूप ओनली। तो यहाँ पे मैंने आई लिखा है, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5। मुझे ये सारी वैल्यू डिस्प्ले करानी है। डिस्प्ले कराने हैं तो आपको printf का यूज़ करना पड़ेगा, % की यूज़ की जरूरत नहीं है। % हम यूज़ करते हैं सिर्फ व्हेन वी आर ट्राइंग टू बी स्कैन द वैल्यू, मीन्स यू आर ट्राइंग टू बी what, taking the input from the users। okay, correct। वैल्यू है मेरा, और यहाँ पे मैंने आई प्रिंट कर दिया है, ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, गेट ch का यूज़ करने वाले हैं, CLR फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, और आपने इंटीजर मेन लिखा है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रिटर्न 0 आ जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू क्लोज दिस मेन मेथड। कंट्रोल F9 कर दीजिए। एंटर 5 इंटीजर वैल्यू, मैंने एंटर किया 12, एंटर कर दिया 3 4 5 6, सो 0 1 2 3 4 5 काउंट में गलती है, ये देखिए। तो ये मेरा यहाँ पे इनपुट हुआ है और ये मेरा डिस्प्ले हुआ है। तो ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है एरे का। तो आपको इस तरीके से प्रोग्राम लिखना, आई होप आपको समझ में आया। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ नॉट देन गुड इनफ, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो अभी हमें ऐसे ही मल्टीपल प्रोग्राम निकालने हैं। अभी हम वो नेक्स्ट सेशन में डिस्प्ले वाले मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, और कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द एरे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मल्टी डायमेंशनल एरे एंड एरे फंक्शन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and I hope आपको समझ में आया है सेशन। If you are like the way I'm teaching you, so please subscribe my channel and forward and share this session with your friends. Thank you so much for supporting me and watching this session. Thanks.